ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਰਰਸ ਦੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 4th ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਬਟ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ, ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ 1 ਹੈ ਐਂਡ x ਕਾਫੀ ਸਮॉल ਹੈ, ਇਫ x ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮॉल, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮॉल ਹੈ x, ਅੱਗੇ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1। ਅੱਗੇ 1 ਹੈ ਐਂਡ x ਕਾਫੀ ਸਮॉल ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਮੈਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ 4th ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ 1 ਐਂਡ x ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮॉल, ਅਗਰ ਅੱਗੇ 1 ਹੈ ਐਂਡ x ਸਮॉल ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ a ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ, a ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਚੋਂ a ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਚੋਂ a ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ b। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ a ਪਲੱਸ b ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਧਰ b ਹੈ ਨਾ a ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ a ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ b ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ a ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਅੰਦਰ 1। ਇਸ ਕੋਲ a ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ a ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ a ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ x ਪਲੱਸ y ਹੈ, ਤੁਸੀਂ y ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ y ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ y ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਕੋਲ y ਹੈ ਸੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ x ਕੋਲ y ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ x ਨੂੰ y ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸੋ a ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲ a ਚੋਂ ਮੈਨੇ a ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ a ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ a ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬਚਿਆ 1, ਇਸ ਦਾ a ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬਚਿਆ ਡੈਲ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ a ਹੈ ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ a ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਇਹ a ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਈਅਰਡ ਵੈਲਿਊ ਐਰਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਰਰ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਈਅਰਡ ਵੈਲਿਊ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਰਰ। ਕੀ ਇਸ ਕੋਲ ਮਈਅਰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਕੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਐਰਰ ਕੋਲ ਮਈਅਰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ a ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਮਈਅਰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਇਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਈਅਰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? a ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲ a ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਲਿਖੋਗੇ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਈਅਰਡ ਵੈਲਿਊ ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ,
है ना। मयड वैल्यू इस कोल हैगी सी, कॉमन आ गई, कितना बचा 1 प्लस माइनस। इस कोल मयड वैल्यू है नहीं सी, तो जिमें ये उपर करते सी उवें ही करना बेटा। ये एरर है, एरर नूं असीं मयड वैल्यू नाल डिवाइड कर देंगे। आ सही है, आ गलत है। समझ गए, कोई कन्फ्यूजन का नहीं। ए का मतलब मयड वैल्यू है, इत्थे कली ए नहीं हैगी, कन्फ्यूज ना हुई हो, इत्थे डेल ए है, डेल ए। डेल ए का मतलब एक कंप्लीट का मतलब एरर है। ए इज़ मयड वैल्यू, दिस इज़ एरर। तो तुसी मयड वैल्यू कॉमन कढ़ रहे हो, तो जिहड़ी अंदर एरर है, एरर डेल ए, उन्होंने मयड वैल्यू नाल डिवाइड करोगे। जिहड़ी चीज़ कॉमन कढ़ी है, अगर किसी क्वांटिटी कोल वो चीज़ नहीं है, तो जिहड़ी चीज़ कॉमन कढ़ी है उहदे नाल डिवाइड करोगे बेटा। समझ गए, कॉमन कढ़ना आ गया पक्का। तो एक तो आ स्टैप भी किमें कॉमन कढ़ी दे बाइनोमियल थ्योरम, ये दोनों यूज़ करके हुण आपां अपनी फोर्थ ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। फोर्थ ऑपरेशन क्लियर। फोर्थ ऑपरेशन अपने कोल हैगी डिवीजन। भी जो डिवीजन वाला क्वेश्चन आ जाए, फिर असी एरर्स नूं किवें सॉल्व करना, हाउ वी सॉल्व द एरर्स। ठीक है, उमें आप दो क्वांटिटी सिलेक्ट कर लें। ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इज मयड वैल्यू प्लस माइनस इट्स एरर। ट्रू वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वांटिटी ਉਹਦੀ मयड वैल्यू प्लस माइनस ਉਹਦੀ एरर। एंड दोनों ਨੂੰ डिवाइड करके, है ना, लेट ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी आर प्लस माइनस डेल आर। बेटा दिस वन इज फर्स्ट क्वांटिटी, दिस वन इज सेकेंड क्वांटिटी, एंड ए इन्होंने दोनों का रिजल्टेंट है, डिवाइड करके जो आया रिजल्टेंट, है ना। व्हाट इज़ ए फर्स्ट क्वांटिटी की मयड वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज़ डेल ए फर्स्ट क्वांटिटी की एरर। बी सेकेंड क्वांटिटी की मयड वैल्यू, डेल बी सेकेंड क्वांटिटी की एरर। आर रिजल्टेंट क्वांटिटी की मयड वैल्यू, डेल आर रिजल्टेंट क्वांटिटी की एरर। इन्होंने दोनों डिवाइड करके ये रिजल्टेंट क्वांटिटी आई है। ठीक है बेटा, तो हुण आपां नूं पता भी मयड वैल्यूज़ तो मयड वैल्यू फाइंड आउट होंदी है। तो मयड वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन मयड वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वांटिटी गिव्स मयड वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी की मयड वैल्यू कितनी है बेटा, आर। फर्स्ट क्वांटिटी की मयड वैल्यू ए, सेकेंड क्वांटिटी की मयड वैल्यू बी। ये तो मयड वैल्यू फाइंड आउट होगी, अब मयड वैल्यू फाइंड आउट होगी। हम असी फाइंड आउट करनी है एरर। ठीक है, तो जिमें मयड वैल्यू तो मयड वैल्यू ऑब्टेन होंगी है बेटा, ट्रू वैल्यू तो ट्रू वैल्यू ऑब्टेन होंगी है। ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट की ट्रू वैल्यू कितनी है बेटा, सारी आर प्लस माइनस डेल आर। ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है, ए प्लस माइनस डेल ए। सेकेंड क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू बी प्लस माइनस डेल। ठीक है बेटा, इधरों आर कॉमन काट लो, मतलब मयड वैल्यू कॉमन काट लो, आर की मयड वैल्यू, आर कॉमन आ गया 1। इस कोल मयड वैल्यू है नहीं सी, इसनों असीं मयड वैल्यू नाल डिवाइड करना। जिवें बेटा इधरों कॉमन कढ़िया उवें इधरों भी कॉमन कढ़ लो, इधरों भी उपरों कॉमन कढ़ो ए 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए। नीचों कॉमन काढ़ लो बी 1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी। इनू थोड़ा अरेंज करके लिख लो, आर 1 प्लस माइनस डेल आर बाय आर, ए बाय बी 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए,
1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी दी पावर -1। देखो ए बाई बी तो एज इट इज़ लिख लिया ए अपॉन बी, ए भी एज इट इज़ लिख लिया, ਇਹਦੀ पावर 1 सी, पावर 1 ਇਹਦੀ पावर 1 सी, बट ਇਹ डिनोमीनेटर 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ डिनोमीनेटर 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ न्यूमीरेटर 'ਚ ਲੈ ਗਏ, पावर नैगेटिव। क्लीयर। ਹੁਣ ए अपॉन बी थोड़ा होर सॉल्व कर दे बेटा, आर 1 प्लस माइनस डेल आर बाई आर, ए बाई बी चेक करो, ए बाई बी किस दे इक्वल है, आर दे, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, इत्थे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, क्योंकि देखो अगे 1 भी है एंड डेल भी एरर स्मॉल होंगी, 1 भी है, 1 है ना इत्थे, तो ये एरर की होंगी बेटा स्मॉल, तो अगर अगे 1 होवे तो आ टर्म स्मॉल होवे तो पावर असी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जोड़ा ये टर्म है जो असी -1 नाल अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जो प्लस है वह माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वह प्लस बन जाएगा, डेल बी बाई बी पावर पॉजिटिव रहेगी। आ नैगेटिव 1 -1 नू अंदर मल्टीप्लाई करता, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करती भी अगर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होवे तो असीं उहनूं 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख सकते, पावर नूं अंदर एक्स नाल मल्टीप्लाई कर सकते। तो बेटा ये जी पावर -1 सी इहनूं अंदर मल्टीप्लाई करता, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लाई करा, इधरों बेटा आर नाल आर कैंसल, ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल आर बाई आर, ये मल्टीप्लाई करो आपस में, पहला 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस डेल बी बाई बी, फिर हाँ बेटा इसनों इस नाल मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस डेल ए बाई ए, ठीक है, फिर इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करो, प्लस डेल ए डेल बी अपॉन ए बी, आ दो ब्रैकेट्स में आपस में मल्टीप्लाई करता, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस आ वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय 1, आ टर्म आ गई, जो दोनों में मल्टीप्लाई करांगे आ जाए। अच्छा डेल ए एंड डेल बी स्मॉल है तो डेल ए डेल बी बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, इट मे बी निगलैक्टेड, इसनों निगलैक्ट कर देंगे, वाई, क्योंकि डेल ए डेल बी दोनों की प्रोडक्ट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, जिमें कल मल्टीप्लाई वाले टॉपिक किया सी ना, मल्टीप्लाई वाले टॉपिक दसिया सीगा भी अगर दो टर्म्स स्मॉल होन तो उन्होंने प्रोडक्ट होर भी ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, तो दोनों की प्रोडक्ट होर भी ज़्यादा स्मॉल होगी, सो दिस मे बी निगलैक्टेड, 1 नाल 1 कैंसल है ना, ये बचा प्लस माइनस डेल आर बाई आर, आ 1 नाल 1 कैंसल हो गया, इन्होंने दोनों चों प्लस माइनस कॉमन, क्योंकि इस कोल भी प्लस माइनस है, इस कोल भी प्लस माइनस है, दोनों का प्लस माइनस कॉमन, यदा बचेगा डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, तो प्लस माइनस कैंसल, डेल आर बाई आर इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ये फार्मूला बन गया एरर का। ये बिल्कुल सेम फार्मूला बनया जो मल्टीप्लाई वाले टॉपिक का सीगा, जो मल्टीप्लाई वाले टॉपिक का फार्मूला सीगा ना, बिल्कुल सेम फार्मूला बने है ना बेटा। देखो जो एरर्स का कंसैप्ट है, एरर्स का है ना, एरर्स एरर फाइंड आउट करनी है, एरर, तो बेटा एडिशन तो सबट्रैक्शन इन्होंने दोनों के फार्मूले सेम है, एंड एरर का फार्मूला मल्टीप्लाई तो डिवीजन का सेम है, एडिशन तो सबट्रैक्शन का एरर का फार्मूला सेम है, मल्टीप्लाई तो डिवीजन का एरर का फार्मूला सेम है। क्लीयर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला किमें ड्राइव किया समझ आ गया, समझ आ गया। पहला मेड वैल्यू नू मेड वैल्यू नाल डिवाइड करके मेड वैल्यू आ गई आ चीज़, फिर ट्रू वैल्यू नू ट्रू वैल्यू नाल डिवाइड किया, ट्रू वैल्यू आएगी, उन्होंने सॉल्व किया, थोड़ा जिहा सॉल्व करके रिजल्ट बन गया एरर की फॉर्म च। क्लीयर बेटा। हुण आपां मैं तुहानूं इहदे नाल दा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके दिखाना डिवीजन का, ओके भी डिवीजन का क्वेश्चन किवें सॉल्व करना है। यस बेटा, क्वेश्चन पहला मैं क्वेश्चन लिखवा देना थोड़ा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने को है बेटा, द रेजिस्टेंस
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ Ohm's law V is equal to IR ਹੁੰਦਾ, where V is equal to 100 plus minus 5 volt and I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in resistance. ਆਪਾਂ ਨੇ resistance ਦੀ percentage error ਕਰਨੀ ਹੈ and also resistance within error limits. ਇਹ क्वेश्चन है। ਹੁਣ क्वेश्चन तो क्लीयर है भी V इज इक्वल टू आई आर होंगे, सो आर का फार्मूला बनया V अपॉन आई, सानू V गिवन है, आई गिवन है, आर असी फाइंड आउट करना, दैट मीनस क्वेश्चन डिवीजन वाला है ना बेटा। ट्रू वैल्यू ऑफ V दी हुई अपन, ट्रू वैल्यू ऑफ V 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये होगी V दी ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू, ये होगी V दी एरर। फिर ट्रू वैल्यू ऑफ करंट दिता है, करंट 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पीयर, तो बेटा ये होगा करंट की मेजर्ड वैल्यू, ये होगी करंट की एरर। रजिस्टेंस फाइंड आउट करने क्या है, रजिस्टेंस का फार्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन आई, दैट मीनस दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिवीजन, इस डिवीजन वाले रूल्स लगनगे। पहला असी मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट करते, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू के फार्मूले तो बनेगी, तो वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू हैगी 100, करंट की मेजर्ड वैल्यू हैगी 10 ओहम आ गई रजिस्टेंस, दैट इज़ मेजर्ड वैल्यू। हम असी फाइंड आउट करते हैं एरर, एरर वास्ते फार्मूला असी लगावांगे डेल आर बाय आर, डेल वी बाय वी प्लस डेल आई बाय आई फार्मूला सी ना बेटा, उमें लगाया मैं आ देखो फार्मूला सी ना, डेल आर बाय आर, डेल ए बाय ए, डेल प्लस डेल बी बाय बी, एक क्वांटिटी का डेल ए बाय ए, दूसरी क्वांटिटी का डेल बी बाय बी, उमें लिखा बेटा। वोल्टेज का डेल वी बाय बी, करंट का डेल आई बाय आई, है ना। डेल आर असी फाइंड आउट करना है, आर सानू पता है, डेल वी 5, वी 100, डेल आई 0.2, दिस इज 10, है ना। डेल आर बाय 10, 0.05 प्लस 0.02, 0.07, 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 0.7 आ गया, ये डेल आर आ गया। तो बेटा ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लिखनी है, पहला मेजर्ड वैल्यू लिखो फिर एरर लिखो। मेजर्ड वैल्यू आई अपने को आ सीगी 10, एरर आई अपने को 0.7, ये आ गई। हम परसेंटेज रेजिस्टेंस करनी है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर का फार्मूला डेल आर बाय आर इंटू 100, है ना बेटा, यही फार्मूला होंगे से डेल आर बाय आर इंटू 100, डेल आर अपने को है 0.7, आर है 10 इंटू 100, है ना, इज इक्वल टू 70% दी एरर, सॉरी इट कम्स आउट टू बी 7%, 7% दी एरर आ जाएगी बेटा, 7%। समझ गए, एम डिवीजन वाले क्वेश्चन करने ने, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू च फर्क है, एरर का फार्मूला तो मल्टीप्लीकेशन वाला सेम है ना बेटा। एवं अपने को डिवीजन वाले क्वेश्चन होंगे, आप सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा तो अटैम्प्ट करांगे, एक बार आप सारे कंसैप्ट सारे फार्मूले बना लिए, तो जो थोड़ा किसी तरह का कोई क्रैम ना करना पवे, कोई रट्टा ना लगाना पवे, थोड़ा पता हो भी ये फार्मूला असी किवें बनाया। मैं थोड़ा कल भी दसिया सीगा वीडियो भी 95% तो न्यूमैरिकल आने के चांसिस होंगे, थ्योरी आने के चांसिस 5% होंगे, 5% न्यूमैरिकल आने के चांसिस ज़्यादा होंगे। क्लियर। सो नाउ कम टू फिफ्थ ऑपरेशन, फिफ्थ ऑपरेशन ते आने बेटा।
फिफ्थ ऑपरेशन इज पावर। अगर कोई चीज़ पावर 'ਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਰਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a ਲਿਖ ਲਓ, ਟਰੂ वैल्यू ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर एंड ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स लिख लो, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स है ना, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर, जी एन है एन इज पावर, एन पावर है, वट इज ए मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट है ना, डेल ए ਇਹਦੀ एरर, एक्स ਇਹਦੀ मेजर्ड वैल्यू बेटा, डेल एक्स इज दी एरर है ना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ मेजर्ड वैल्यू लिखनी है, मेजर्ड वैल्यू तो मेजर्ड वैल्यू तो मेजर्ड वैल्यू तो आ जाएगी, मेजर्ड वैल्यू की पावर लो मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी, दैट मीनस कि मेजर्ड वैल्यू की पावर लो थोड़े कोल मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी, यही तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हुण एरर किमें सॉल्व करना, एरर तो बेटा एरर तो एवें बनेगी भी ट्रू वैल्यू की पावर लो थोड़े कोल ट्रू वैल्यू आ जाएगी, तो ट्रू वैल्यू एक्स दी ट्रू वैल्यू कितनी लिखांगे बेटा, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, ठीक है। एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए दी ट्रू वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, ए प्लस माइनस डेल ए, समझ गए। आपने यदी ट्रू वैल्यू लिखती इधर, यदी ट्रू वैल्यू लिखती इतने, मेजर्ड वैल्यू की पावर तो मेजर्ड वैल्यू आएगी, ट्रू वैल्यू की पावर तो ट्रू वैल्यू आएगी। हुण इत्थों एरर का फार्मूला बनाना, इनू आप लिखांगे बेटा ए प्लस माइनस डेल ए, इस चो एक्स कॉमन कड्डो, एक्स पावर एन उपर रख के एक्स कॉमन कड्डो दोनों चो, मतलब मेजर्ड वैल्यू कॉमन कड्डो, एक्स की मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू कॉमन कड्डोगे इत्थे एक्स दी आ जाएगा 1, इत्थे मेजर्ड वैल्यू है नहीं है ना, उरे मेजर्ड वैल्यू नहीं है तो मेजर्ड वैल्यू नाल डिवाइड हो गया। देखो पावर मैंने एज इट इज़ रखी है, पावर एज इट इज़ रखी है, एन मैं सिर्फ इन्होंने दोनों चों मेजर्ड वैल्यू कॉमन कढ़ ली एक्स। हुण जिहड़ी ये पावर है ये बेटा एक्स ते भी लगेगी, ये पावर इस ते भी लगेगी, लगा दो, ये पावर एक्स ते भी लग गई, ये पावर इस ते भी लग गई, एक्स की पावर एन जिहड़ा है, एक्स की पावर एन है ना बेटा, आ चेक करो एक्स की पावर एन किस दे इक्वल है, ए दे इक्वल है, ए दे इक्वल। यार इधरों भी ए कॉमन कढ़ लेंदे, इधरों भी ए कॉमन कढ़ लो, पूरी स्टैप करदा मैं, ए कॉमन कढ़ांगे जे मान लो सपोज करो ए कॉमन कढ़ दें तो ए कॉमन कढ़ांगे तो अंदर बचेगा 1, इसको मेजर्ड वैल्यू नहीं है तो मेजर्ड वैल्यू नाल डिवाइड करता है, ये लिख लो स्टैप, अपना स्टैप बच जाएगा एक ना, एक स्टैप बचा लिया मैंने, ए एक्स की पावर एन ए पुट करता पुट, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू ए, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, ए नाल ए कैंसल, क्लियर, ए नाल ए कैंसल हो गया, ए नाल ए कट्टिया जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, इत्थे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, चेक करो अगे 1 है एंड डेल एक्स स्मॉल होंगे, एरर स्मॉल ही होंगी बेटा, पूरे 1 है एरर स्मॉल है, जो अगे 1 हो एरर स्मॉल हो तो पावर में अंदर एन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन डेल एक्स बाई एक्स, एन नूं अंदर मल्टीप्लाई करता, यूज़ बी टी, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर अगर एन है तो उन्होंने 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख सकते हैं, 1 नाल 1 कट्टिया जाएगा बेटा, प्लस माइनस ना प्लस माइनस कट्टिया जाएगा, डेल ए बाई ए इज इक्वल टू एन डेल एक्स बाई एक्स आ गया, ये आ गया एरर का फार्मूला। हुण एरर का फार्मूला किमें याद रखना है, सुनो एरर का फार्मूला किमें याद रखना है, मेजर्ड वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अपने कोल क्वेश्चन सीगा वो भी मेजर्ड वैल्यू है, जो एरर लिखनी है बेटा एरर
एरर लिखनी है, सुनो। तो इधरली क्वांटिटी ਨੂੰ ਐਵੇਂ लिख लो del a by a, इधर पावर अगे लिख लो, पावर अगे, फिर क्वांटिटी लो del x by x, del a by a पावर अगे del x by x। जे दो क्वांटिटीज़ होंदियां लाइक दिस, लाइक सपोज करो a x की पावर n, y की पावर m, z की पावर l, मान लो तीन क्वांटिटीज़ होंगी। फिर आप इनू भी एवं लिखते पावर की फॉर्म च, del a by a इज इक्वल टू पावर अगे del x by x प्लस पावर अगे del y by y प्लस पावर अगे del z by z। समझ गए? एवं तुसी एरर का फार्मूला लिख सकते हो जे कोई चीज़ पावर की फॉर्म च हो। अच्छा, अगर पावर नैगेटिव है तो भी तुसी प्लस लिखना है, क्योंकि मैं थोड़ा कल भी दसिया सी भी एरर्स कदे माइनस नहीं होंदियां, एरर्स हमेशा प्लस होंदियां ने। एरर्स गलती दे उपर गलती, गलती वधेगी बेटा, गलती कदे घटेगी नहीं। मान लो जिमें आ भी सुनो ना, नोट ध्यान नाल सुनो। जिमें सपोज करो ए हैगा एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन, जैड की पावर एल। तो कई स्टूडेंट्स इनू एवं सोच लेंगे ने भी del a by a इज इक्वल टू m del x by x प्लस पावर अगे del y by y, भी या नीचे है भी शायद नेगेटिव आ जाएगा, करना उमी है del z by z, नहीं ये भी प्लस च ही लेना बेटा, क्योंकि तुसी वध तो वध इनू एवं लिख लोगे x की पावर m, y की पावर n, z की पावर माइनस l। स्टूडेंट्स का सोचना होंगे भी Z की पावर L नीचे है, Z की पावर ऊपर जाके माइनस L, उरे तक तो ठीक है। बट जो तुसी एरर का फार्मूला लिखोगे ना बेटा, एरर का, एरर कैन नैवर बी सबट्रैक्टेड, गलती कदे भी सबट्रैक्ट नहीं हो सकती। एडिशन होएगी m की पावर del x by x, n की पावर del y by y। अगर कोई पावर नैगेटिव भी है, इंपोर्टेंट है चीज़ बेटा, ये इत्थे मिसटेक होएगी। अगर कोई पावर नैगेटिव भी है तो भी तुसी उन्होंने प्लस च ही लिखोगे, माइनस च नहीं लिखोगे, प्लस च ही लिखोगे। समझ गए? तो भी प्लस च ही लिखोगे। अगर पावर नैगेटिव भी है या कोई डिनोमीनेटर च भी है, डिनोमीनेटर च, तो भी वो पावर प्लस च लिखोगे। आ देखो पावर अगे लिखो del x by x, बहुत आसान है। पावर प्लस पावर अगे del y by y, फिर प्लस पावर अगे del z by z, एवं लिखना। थोड़ा मैं यदा भी एक क्वेश्चन करवाना बेटा, यदा भी क्वेश्चन करवाना। क्वेश्चन है फाइंड relative error in z if z is equal to a की पावर 4, b की पावर 1/3, c d की पावर 3/2। ये अपना z देता, कहते रिलेटिव एरर z की फॉर्म च लिखो। रिलेटिव एरर का मतलब होंगे del z by z लिखना, ये असी फाइंड आउट करना, सानू z गिवन है ना। तो बेटा इनू असीं एवें लिख लेंगे z a की पावर 4, b की पावर 1/3, c की पावर -1, d की पावर -3/2। फिर इन्हों एवें लिखांगे del z by z इज इक्वल टू पावर अगे del a by a, प्लस पाना है हमेशा, पावर अगे del b by b, माइनस है ना तो भी प्लस पाना है del c by c, पावर कितनी सी 1 है ना, माइनस है तो भी प्लस पाना है, प्लस 3/2 del d by d। माइनस पाना ही नहीं हैगा, एरर दे विच कदे भी माइनस पाना ही नहीं हैगा। ये रिलेटिव एरर लिखी z की फॉर्म च। क्लीयर बेटा? कोई कन्फ्यूजन? ये सीगियां 5 ऑपरेशंस। आप 5 दियां 5 ऑपरेशंस नूं सम अप करते हैं, इकट्ठा करते हैं। चलो ठीक है, ध्यान नाल समझियो। ओके, ये तो क्लीयर है भी। फर्स्ट क्वांटिटी
ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, है ना। अगर क्वेश्चन एडिशन का है, सब तो फर्स्ट प्रोसैस, अगर क्वेश्चन एडिशन का है तो वो मेजर्ड वैल्यू किवें फाइंड करोगे, मेजर्ड वैल्यू, फिर वो एरर किवें फाइंड आउट करोगे। मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट होएगी मेजर्ड वैल्यूज़ नू ऐड करके, एरर फाइंड आउट होएगी एरर्स नू ऐड करके। अगर क्वेश्चन सबट्रैक्शन का, सबट्रैक्शन का, तो मेजर्ड वैल्यू निकलेगी मेजर्ड वैल्यूज़ नू माइनस करके, बट जी एरर निकलेगी वो माइनस करके नहीं निकलनी, वो प्लस करके निकलेगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई है तो मेजर्ड वैल्यू निकलेगी मेजर्ड वैल्यूज़ नू मल्टीप्लाई करके। जहर जी प्रोसैस एडिशन है तो ऐड कर दो, सबट्रैक्शन है तो सबट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एरर के दो फार्मूले याद रखने ने इत्थे, एक तो सीगा ए डेल बी डेल ए, एंड दूसरा फार्मूला जिहड़ा ज़्यादा क्वांटिटीज़ ते लग सकता है, डेल आर बाय आर, डेल ए बाय ए, डेल बी बाय बी। ये सिर्फ दो क्वांटिटीज़ से लगेगा, है ना। अगर क्वेश्चन डिवीजन का आता है, डिवीजन तो मेजर्ड वैल्यू आएगी डिवाइड करके, एरर का फार्मूला सिर्फ आही रहे। अच्छा सुनो केयरफुली, एक चीज़ नोट करो भी ये फार्मूला सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ते लगेगा, ओनली मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन तो नहीं लगता बेटा ये फार्मूला, डिवीजन वास्ते तो कला ही फार्मूला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सोचते हैं भी मल्टीप्लाई तो डिवीजन का फार्मूला आ वाला सेम है तो आ वाला भी सेम होएगा, नहीं, ये फार्मूला डिवीजन वास्ते भी नहीं है, ये ओनली मल्टीप्लीकेशन वास्ते, ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन। हाँ ये फार्मूले दोनों वास्ते हैं, डिवीजन वास्ते भी मल्टीप्लाई वास्ते। एंड पावर, पावर तो उही कंसैप्ट है बेटा, मैं तिने लिख देना इत्थे, तो यदि डेल ए दी पावर डेल ए बाय ए, पावर अगे डेल एक्स बाय एक्स प्लस पावर अगे डेल वाई बाय वाई, डिनोमीनेटर चाहे तो भी प्लस पावर अगे डेल जेड बाय जेड, पावर नैगेटिव च नहीं लेनी। दीज आर द 5 फार्मूलाज जिहड़े आपां डिस्कस कर लिए बेटा, समझ गए। ए डेल ए बाय ए, पावर अगे एन डेल एक्स बाय एक्स, प्लस पाना विच कदे माइनस नहीं पाना, एम पावर डेल वाई। अगर पावर नैगेटिव भी है तो भी प्लस ही पेगा, नैगेटिव लेने नहीं बस वो नैगेटिव खत्म कर देना, एम डेल बाई बाई वाई प्लस पावर अगे एल डेल जेड बाई जेड। क्लियर बेटा। तो ये फार्मूले ने 5 जिन्हों के बिहाफ से तुहानूं न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये फार्मूले किवें बने, एडिशन के फार्मूले, सबट्रैक्शन के, मल्टीप्लीकेशन के, डिवीजन के, पावर के, मैं थोनों कला कला फार्मूला ड्राइव करता बेटा, ठीक है। बट मैं फिर भी थोनों एडवाइस कराँगा भी इन्हां फार्मूलिਆਂ की डेरीवेशन इन्नी इंपोर्टेंट नहीं है, इन्हां फार्मूलिਆਂ की डेरीवेशन सिर्फ 5% इंपोर्टेंट है, 95% चांस तो न्यूमेरिकल्स आने दे ही होंदे ने बेटा। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर चों न्यूमेरिकल आने ही चांस ज़्यादा नहीं, एरर्स दे विचों, डिमेंशन एनालिसिस चों भी एंड एरर्स चों भी 95% चांस न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा हुण आपां इन्हां नाल रिलेटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करांगे। क्वेश्चन एडिशन का है कि क्वेश्चन सबट्रैक्शन का है, मल्टीप्लीकेशन का है, डिवीजन का है कि पावर का है ना। ये तुसीं अपनी कॉमन सेंस, अपनी जनरल नॉलेज यूज़ करियो। मैं थोनों एटलीस्ट सारे का एक एक क्वेश्चन का अटैम्प्ट करवाई दूँगा हूँ। क्लीयर बेटा। चलो इन्हां दे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं आप। ओके वेट अ मिनट।
ओके, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बेटा। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ rectangle are 10.5 plus minus 0.2 centimeter and 5.2 plus minus 0.1 centimeter. Calculate the perimeter of rectangle within error limits. पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, कल पेरीमीटर, ठीक है। एंड बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला होंदा है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का 2 × L+B। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है वो एडिशन के रूल्स नाल लगे, एडिशन के रूल्स नाल सॉल्व होएगा। देखो L ते B की एडिशन की गई है ना बेटा, मतलब ये क्वेश्चन एडिशन नाल सॉल्व होएगा। तो बेटा सानू ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ दी हुई है 5.2 प्लस माइनस 0.1, सॉरी ये ब्रेडथ है बेटा, चलो कुछ भी ले लो, चाहे इनू लेंथ ले लो इनू ब्रेडथ ले लो, एक ही गल। ओके, दिस इज ब्रेडथ, ये ब्रेडथ की मेजर्ड वैल्यू होगी, ये होगी ब्रेडथ की एरर। ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ आ सी बेटा 10.5 प्लस माइनस 0.2 लेंथ, ये होगी, ये तो हो गया मेजर्ड वैल्यूज़ लेंथ ते ब्रेडथ दी, ये हो गया बेटा लेंथ एंड ब्रेडथ दी एरर्स। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पहला मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थोनू पता है मेजर्ड वैल्यू फार्मूला लगाओ, मेजर्ड वैल्यूज़ ही पुट होंगी, मेजर्ड वैल्यूज़ 2 × L दी मेजर्ड वैल्यू 10.5, B दी मेजर्ड वैल्यू 5.2 है ना, सॉल्व करके है ना 2 × 15.7 कितना आ जाएगा बेटा, ये 31.4, ये मेजर्ड वैल्यू आ गई। हुण असीं फाइंड करनी है एरर। एरर ते भी इसे दे अकॉर्डिंग फार्मूला लगाओ बेटा, इसनूं देखते हुए फार्मूला लगाओ, डेल P इज इक्वल टू 2 बाहर हैगा, लिखो डेल L प्लस डेल B। एडिशन दे विच सिर्फ एरर्स ऐड कीते जांदे ने, आ देखो बेटा मेजर्ड वैल्यू जो फार्मूला है वो लग जाएगा, जो फार्मूला वो लग जाएगा बेटा, इत्थे एरर्स ऐड हो जाएंगी, एरर्स ऐड होके एरर आ जाएगी, वही किया मैंने, एरर्स नूं ऐड किया। 2 तो अगे फार्मूले के कारण लग्या हुआ बेटा, ठीक है। तो डेल P इज इक्वल टू 2 × डेल L, डेल L अपने को है 0.2, डेल B अपने को है 0.1 है ना, सॉल्व करके 0.3 0.6 बन गया। तो अपने को है ना पेरीमीटर दी ट्रू वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ये आ जाएगी P प्लस माइनस डेल P अपने को आया 31.4, डेल P आया 0.6 सेंटीमीटर। जे सानू कोई रैलेटिव एरर पूछी होंगी या परसेंटेज एरर पूछी होंगी, फिर इस तो अगे असी रैलेटिव या परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर देंगे। उन्होंने पूछी भी नहीं सी, ना रैलेटिव एरर पूछी ना परसेंटेज एरर पूछी, तो कली पेरीमीटर फाइंड करने को क्या सीगा, विद इन एरर लिमिट्स। आर सी क्वेश्चन कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद इन एरर लिमिट्स, है ना, सिर्फ पेरीमीटर फाइंड करने को क्या है एरर लिमिट्स दे विच। तो असी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया एरर्स दी लिमिट्स दे विच। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन एडिशन दा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज
two bodies measured by thermometer is T1 हैगा 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 हैगा 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट difference in temperature within error limits. ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ true value of first temperature देती बेटा 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है ना. ये होगी यदि मेजर्ड वैल्यू, ये होगी यदि एरर. ट्रू वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी दे दी 50 प्लस माइनस 0.5. तो बेटा ये होगी यदि मेजर्ड वैल्यू, ये होगी यदि एरर सेकंड क्वांटिटी. असी फाइंड आउट करना डिफरेंस. वी हैव टू फाइंड डिफरेंस इन टेम्परेचर है ना. डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब जिहड़ा ये क्वेश्चन है इस ते सबट्रैक्शन वाले रूल्स लगणगे. ये क्वेश्चन सबट्रैक्शन का है, सबट्रैक्शन है ना. तो आप पहला मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट करो. मेजर्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर. पहला मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू तो मेजर्ड वैल्यू नू माइनस करके आ जाएगी है ना. T2 अपने को हैगा सीगा 50, T1 अपने को हैगा 20 30. ये मेजर्ड वैल्यू आ गई. हुण फाइंड आउट करो एरर. हमेशा पहला मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट करा करो फिर एरर फाइंड आउट करा करो. एरर ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर. एरर फाइंड आउट करनी है. एरर तो ऐड करके ही निकलेगी, एरर नहीं माइनस करके निकलेगी. सबट्रैक्शन के रूल्स तुहानूं याद है ना. चेक करो सबट्रैक्शन के रूल च मेजर्ड वैल्यू तो माइनस करके आ जाएगी बट एरर ऐड करके ही आएगी. ऐड करके 0.5 प्लस 0.5 ओके. ये अपने को लगा 0.1 डिग्री सेल्सियस. तो बेटा ट्रू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, दी ट्रू वैल्यू लिखनी है T प्लस माइनस एरर. T अपने को आया 30, एरर 0.1. दैट इज़ आंसर. इस क्वेश्चन से भी उन्होंने कोई रिलेटिव एरर, कोई परसेंटेज एरर नहीं पूछी. जो पूछी होंगी तो आप इस तो अगे स्टैप्स लेके फाइंड कर सकते थे. ठीक है. सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ सबट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. द लेंथ एंड ब्रेड्थ of a rectangle are 5.7 plus minus 0.1 centimeter, 3.4 plus minus 0.2 centimeter. Calculate area of a rectangle and its percentage error. रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स परसेंटेज एरर. सानू ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ देती 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ये होगी लेंथ की मेजर्ड वैल्यू, ये होगी लेंथ की एरर. सिमिलरली ट्रू वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ देती 3.4 प्लस माइनस 0.2. ब्रेड्थ की मेजर्ड वैल्यू, ब्रेड्थ की एरर. साने फाइंड आउट करना है एरिया. एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया होंदा लेंथ इंटू ब्रेड्थ. मतलब ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन वाला. इस ते मल्टीप्लीकेशन के रूल्स लगनगे. पहला मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लो. मेजर्ड वैल्यू ऑफ एरिया. मेजर्ड वैल्यू कढ़नी है. मेजर्ड वैल्यूज़ नू मल्टीप्लाई करके 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.4
सॉल्व करके एरिया आ जाएगा बेटा 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.4 19.38 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। हूँ फाइंड आउट करो एरर। एरर वास्ते फिर वो फार्मूला लगा लो बेटा डेल ए। एरर वास्ते सीधा फार्मूला लगा लो एल डेल बी प्लस बी डेल एल। 5.7 डेल बी 0.2 बी 3.4 0.1 है ना। सॉल्व करके डेल ए आ जाएगा बेटा डेल ए। ऑन सॉल्विंग थोड़ा ये आंसर बुक च दिता होया बेटा। मैं आंसर बुक चो इस करके देख रहा भी टाइम ना वेस्ट हो थोड़ा। तुसी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा मल्टीप्लाई करना है सिंपल मल्टीप्लाई तो एडिशन है। सॉल्व करके थोड़ा जो डेल ए आ जाएगा डेल ए इट इज़ प्लस माइनस या प्लस माइनस है तो 1.48 जिन्हों अप्रोक्सीमेटली चलो 1.48 ही लिख लो। तो हम ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया ए प्लस माइनस डेल ए आया बेटा 19.38 डेल ए 1.48 ये आंसर आ गया एरिया का। हूँ अपने परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करना। उन्होंने क्वेश्चन च पूछा है इट्स परसेंटेज एरर ऑफ एरिया ये लिखांगे डेल ए बाई ए इंटू 100%। ये आ जाएगा बेटा 1.48 अपॉन 19.38 इंटू 100 है ना। सॉल्व करके आंसर थोड़ा आंसर आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन सीखा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ रहा है ना भी। ये तो थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज काम करेगी पहचानना भी केड़ा क्वेश्चन एडिशन का है केड़ा क्वेश्चन सबट्रैक्शन का है केड़ा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का केड़ा क्वेश्चन डिवीजन का है। इस वास्ते थोड़ी जनरल नॉलेज हेल्प करेगी। ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। यस बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इज बाय यूजिंग formula Q is equal to CV if Q is equal to 100 plus minus 0.1 coulomb and V is equal to 10 plus minus 0.1 volt, then find C and its relative error। C फाइंड आउट करो तो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो। सोल्यूशन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्रू वैल्यू ऑफ क्यू देती क्यू मतलब चार्ज ये होगी ਉਹਦੀ मेजर्ड वैल्यू ये होगी बेटा ਉਹਦੀ एरर। ट्रू वैल्यू हो वोल्टेज दी देती 10 प्लस माइनस 0.1 ये होगी वी दी मेजर्ड वैल्यू ये होगी वी दी एरर। ये मैं ऊपर तां पाना भी थोड़ा पता चल जाए भी क्यू की है वी की है डेल क्यू की है डेल वी की है। ਆਪਾਂ ने फाइंड करना सी तो क्यू इज़ इक्वल टू सी वी सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी दैट मीनस साडा जिहड़ा क्वेश्चन है डिवीजन के रूल नाल सॉल्व होएगा। डिवीजन के रूल नाल क्यू तो भी डिवाइड करके सी आंदा ना बेटा तो डिवीजन के रूल्स लगणगे। पहला मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट कर मेजर्ड वैल्यू नूं मेजर्ड वैल्यू नाल डिवाइड करके 100 डिवाइड बाई 10 उस तो बाद एरर फाइंड आउट कर। एरर वास्ते फार्मूला लगाओगे तुसी डेल सी बाई सी डेल क्यू बाई क्यू डेल वी बाई वी। डेल सी अपने को आया 10 डेल क्यू 0.1 क्यू 100 डेल वी 0.1 वी 10 है ना। ये बन गया अपने को डेल सी 0.00 0.1 तो है सीगा ना आ जाएगा 0.01 आ 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल सी आ गया अपने को
0.011 इंटू 10 मतलब 0.11 आ गया। तो देयरफॉर सी ट्रू वैल्यू ऑफ सी प्लस माइनस डेल सी 10 डेल सी 0.11। रिलेटिव एरर ऑफ सी फाइंड आउट करना, रिलेटिव एरर ऑफ सी डेल सी बाई सी फाइंड आउट करना वाले 0.11 डिवाइडेड बाई 10 1.1 इज द रिलेटिव एरर। ठीक है बेटा, दैट इज द क्वेश्चन है ना, ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं आप। अज की वीडियो लास्ट क्वेश्चन है। एक वीडियो मैं थोड़ा होर सेंड करांगा है ना, जिस मैं सारी एक्सरसाइज सॉल्व करांगा बेटा। एक्सरसाइज सॉल्विंग की वीडियो वैसे पहला थोड़ा मैं प्रैक्टिस वास्ते देवांगा, थोड़ा क्लिप्स भेज देना, बट एक बार तुम सॉल्व कर लो, उस तो बाद मैं भी थोड़ा वीडियो सेंड करांगा एक्सरसाइज की या विचों मेन क्वेश्चन की, क्योंकि एक अलग जे तरह के क्वेश्चन हैगे ने हले जोड़े शायद तुहाडे तो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, वो भी थोड़ा दसांगा। हुण जिवें सपोज करो जिहड़ा मैं नैक्सट क्वेश्चन करवा रहा पावर रूल वाला, अ फिजिकल क्वांटिटी इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान नाल समझियो। अ फिजिकल क्वांटिटी x is calculated from relation x is equal to a b square upon root c। Calculate percentage error in x if percentage error of a, b and c are 4%, 2%, 3%। अगर एवं हो गए, ठीक है। सोल्यूशन सानू गिवन की है बेटा, गिवन सानू परसेंटेज एरर ऑफ ए गिवन है, परसेंटेज एरर ऑफ ए। पहला मैनू यह दसो परसेंटेज एरर ऑफ ए नू लिखोगे किवें मैथेमैटिकली, परसेंटेज एरर ऑफ ए नू मैथेमैटिकली किवें लिखोगे, एवें लिखोगे है ना, डेल ए बाई ए इंटू 100%। ये थोनू दिता हुआ बेटा 4%। सिमिलरली दसो परसेंटेज एरर ऑफ बी नू किवें लिखोगे, बी नू डेल बी बाई बी इंटू 100। ये कितनी दी हुई बेटा थोनू, कोरसपोंडेंस 2%। सिमिलरली परसेंटेज एरर ऑफ सी दी हुई है, डेल सी बाई सी इंटू 100 कितनी 3%। एंड थोनू पूछा कि है परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, एवं लिखांगे ना बेटा, एक्स की परसेंटेज एरर ये फाइंड आउट करनी। समझ गए, जो भी तुसी यह क्वेश्चन आ जाए तो एवं लिख लिया करो बेटा भी सानू की गिवन है। परसेंटेज एरर ऑफ ए का मतलब सानू आ गिवन है, परसेंटेज एरर ऑफ बी का मतलब आ गिवन है, सी का आ गिवन है, एक्स का फाइंड करना है। रिलेशन की है, एक्स इज इक्वल टू ए बी स्केयर बाय रूट सी, जिन्होंने लिख सकते हो ए बी स्केयर तो सी की पावर 1/2 है ना। तो बेटा पावर रूल यूज़ करांगे, डेल एक्स बाय एक्स, ए की पावर 1 डेल ए बाय ए प्लस बी की पावर 2 डेल बी बाय बी, ये भी प्लस च लिखना है ना। पावर कितनी सी की 1/2 डेल सी बाय सी। हुण तुसी आ 100 बनाने वास्ते है ना, सारे 100 है ना बेटा, 100 बनाने वास्ते 100 नाल सारे नू मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, 100 नाल मल्टीप्लाई भी कर दो, परसेंट भी पा दो, डेल ए बाय ए इंटू 100 नाल परसेंट पा दो 2, डेल बी बाय बी इंटू 100 नाल परसेंट पा दो, हाफ डेल सी बाय सी इंटू 100 नाल परसेंट पा दो। ये तो असी फाइंड आउट करना है डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100, ये तो फाइंड करना है। डेल ए बाय ए इंटू 100% आ देखो बेटा गिवन है, डेल ए बाय ए इंटू 100% कितना गिवन है 4% है ना। डेल बी बाय बी इंटू 100 कितना गिवन है 2%।
डेल सी बाई सी कितना गिवन है बेटा 3%, कितना बने 4% प्लस 4% प्लस 3/2%, है ना। 3/2 मतलब 1.5, 4% प्लस 4% प्लस 1.5%, 9.5% इज द आंसर. दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स. बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हले मैं थोड़ा एक्सरसाइज नहीं भेजांगा, चलो पहला आप एक वीडियो होर बनावांगे जिस च मैं इस नाल रिलेटेड होर नुमैरिकल्स भी करांगे, है ना। तो एक अलग टाइप के नुमैरिकल्स आते हैं एरर्स के विच ही, थोड़ा वो भी समझावांगा। हले तुसी फिलहाल यही 5 तरह के नुमैरिकल्स ते कंसनट्रेट करो। जे थोड़ा बुक च कोई इस नाल दा नुमैरिकल मिलता तो तुसी ट्राई करो सॉल्व करने की। क्लीयर बेटा, थैंक यू वेरी मच।